નમસ્કાર, ગુડ ઇવનિંગ. આજની ધી સધર ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી અને ગ્લોબલ પ્રાઇવેટ રિસોર્સ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર દ્વારા આયોજિત ટેક્સટાઇલ પર્વ પાર્ટ 2 એના છઠ્ઠા દિવસે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણી સમક્ષ મહેમાનો બધા આવી ગયા છે, ધીરે ધીરે બધા આવે છે. તો આજના પ્રસંગે વેલકમ સ્પીચ માટે હું શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી, આપણા ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રીને વિનંતી કરું. શ્રી નિખિલભાઈ. ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. અમરીશભાઈ, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને થેન્ક યુ વેરી મચ. એસપી વર્મા સાહેબ પોતે જ એક બ્રાન્ડ છે, એટલે એમની ઓળખાણ ન તો આપવાની હોય. કેટલાય મિત્રો એવા છે કે જે માત્ર વર્મા સાહેબના નામથી અહીં આવ્યા છે. વર્મા સાહેબને આપણે કામ કરતા અમે લોકોએ તો જોયા છે, અને ખાસ કરીને મુંબઈની ટેક્સટાઇલ ઓફિસમાં અમે જ્યારે પણ જતા હતા, વાત એવી હોય કે બાકીના બદલાયા કરે પણ વર્મા સાહેબ નહીં બદલાય. એટલે જે સાચો ખરો નોલેજ એ એમની પાસે હોય, સોલ્યુશન પણ એમની પાસે હોય. એટલે કમિશનર પણ એમને જ બોલાવીને કે ભાઈ હવે આમાં અટકેલું છે, ક્યાં આગળ વધવું, કેવી રીતે આગળ વધવું. એટલે ટૂંકમાં આ સિક્કો જેમણે જમાવ્યો છે એઓની સેવા અત્યારે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પણ લઈ રહી છે. આપણે 100 કરોડનો એક પ્રોજેક્ટ આખો સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ટેક્સટાઇલનો બનાવી રહ્યા છે, અને એમાં એમના કન્સલ્ટન્ટ તરીકે આપણે એમની નિમણૂક કરી છે. એ આપણા માટે બહુ આનંદની વાત છે. તેઓ એક પ્રાઇવેટ કંપની સાથે અત્યારે સંકળાયા છે અને અમદાવાદથી તેઓ મોટેભાગે આવતા હોય છે. ટેક્સટાઇલ ટાસ્ક ફોર્સ ચેમ્બરે બનાવ્યું છે. એ ટેક્સટાઇલ ટાસ્ક ફોર્સની અંદર આ વખતે આશીષભાઈના નેતૃત્વ હેઠળ આપણે જબરદસ્ત કામ કરી રહ્યા છે. એમાં રિપ્રેઝન્ટેશન હોય, ડિમાન્ડ હોય, નવા ઇનોવેશન્સની વાત હોય, ઇન્વેન્શનની વાત હોય, આ બધું સરકારની પોલિસી, એ પોલિસી મેકિંગમાં આપણો હાથ રહે, આપણી વાતો સંભળાય, આ બધા પ્રયત્નો આપણે કરતા હોય છે. અને ટેક્સટાઇલના 5 ઘટકોને આપણે સાથે રાખીને આ કામ કરતા હોઈએ છીએ. તો એવા એસપી વર્મા સાહેબનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તમે મિત્રો રેગ્યુલર આવો છો, એટલે મારે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વિશે વધારે તમને માહિતી આપવાની જરૂર નથી, સુરત શહેર વિશે આપવાની પણ જરૂર નથી. તો વર્મા સાહેબનું સ્વાગત. આશીષભાઈ ગુજરાતી, મેં કહ્યું તે પ્રમાણે મારા ગાઈડ ફ્રેન્ડ એન્ડ ફિલોસોફર તરીકે ટેક્સટાઇલની અંદર અત્યારે મોટાભાગની જવાબદારીઓ સંભાળી લીધી છે. અશોકભાઈ, વિજયભાઈ અને આશીષભાઈએ 15 થી 16 વખત દિલ્હી જઈને હમણાં જે QCO હટ્યો એ યાન સ્ટેજ પરથી કે મશીનરીના સ્ટેજ ઉપરથી, એમાં વર્મા સાહેબની સાથે રહીને આશીષભાઈનો, અશોકભાઈનો અને વિજયભાઈનો બહુ મોટો ફાળો હતો. આશીષભાઈ, તમને દિલથી અભિનંદન અને આભાર. મિત્રો, આપ સૌ મિત્રો ટેક્સટાઇલની સાથે સંકળાયેલા છો, અને ટેક્સટાઇલના ઇનોવેશનની જ્યારે વાત હોય તો દરેક વિદ્યાર્થી તરીકે આપણે બધા આ વાતને મૂલવતા હોઈએ છીએ. જીવનના અંત સુધી બધાએ વિદ્યાર્થી બનીને રહેવું જોઈએ, તો જ તમને કંઈક નવું જાણવા મળે. એટલે કુતૂહલવશ આપ સૌ અહીંયા જ્ઞાનની પીપાસાને માટે પધાર્યા છો, એ માટે આપ સૌનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરીને આપણે વર્મા સાહેબને પુષ્પગુચ્છ અને મોમેન્ટોથી આવકારીએ. મિત્રો, વર્મા સાહેબનો પરિચય આપવા માટે આશીષભાઈને બોલાવવો હોય, પહેલા વર્મા સાહેબનો 2 શબ્દોમાં પરિચય આપવાનો જો મને કહેવામાં આવે ને, 2 જ શબ્દ નહીં આપતા તમે, 2 શબ્દો નહીં આપતા. તો હી ઇઝ અ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એક મોટી ટેક્સટાઇલની શિક્ષણ સંસ્થા છે. અને સાચું કહું તો ટેક્સટાઇલના જ્ઞાનનો ટ્રેઝર છે, ખજાનો છે. એવા શ્રી એસપી વર્મા સાહેબનો પરિચય આપવા શ્રી આશીષભાઈ ગુજરાતી, આપણા પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ અને ટાસ્ક ફોર્સના પ્રમુખ ચેરમેનશ્રીને વિનંતી કરો. આશીષ, મારા માટે બંને જવાબદારી છે, અબાઉટ ધ પ્રોગ્રામ અને ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ સર વર્મા સાહેબ. વર્મા સરનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું એટલે મારા માટે સૌભાગ્યની વાત છે. અને સર જ્યારે અહીંયા અમદાવાદ આરો ઓફિસ હતા ત્યારથી ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે એકદમ જમીની એનાથી જોડાયેલા છે. વર્મા સરનું એક્સપિરિયન્સ સ્પિનિંગ મિલમાં સર ને સ્પિનિંગ મિલમાં એ પહેલાં પ્રાઇવેટ જોબ કરતા હતા,
અને પછી આપણી આ ગવર્મેન્ટ જોબ જોઈન કરી અને એમણે અમદાવાદ આરઓ તરીકે બી કામ કર્યું છે, પછી કલકત્તા આરઓમાં કામ કર્યું છે અને ટેક્સટાઇલ કમિશનર ઓફિસમાં છેલ્લે તેઓ એડિશનલ ટેક્સટાઇલ કમિશનર તરીકે રિટાયર થયા. પરંતુ એમની જો અત્યારે ખાસ કરીને જે સુરત પરનું એટલે સુરત માટે જે એમનું યોગદાન આપ્યું છે, સુરત શહેર હંમેશા એમનું ઋણી રહેશે. અને સુરત શહેર માટે જે કરવું છે તમને એક જ એક્ઝામ્પલ આપું. જ્યારે 1999માં પહેલી વાર ટફ સ્કીમ આવી તો ત્યારે ટફ સ્કીમમાં આપણે ત્યાંથી કોઈ એના બેનિફિશિયરી એટલે કોઈ લેવા નહોતું માંગતું કે ભાઈ ટફ સ્કીમનો બેનિફિટ કેવી રીતે લેવો. અને ગવર્મેન્ટે એમને જવાબદારી સોંપી કે ભાઈ આને તમે ટફ સ્કીમને કોઈ બી હિસાબે બેનિફિશિયરી વધે એવું કરો. અને બેનિફિશિયરી વધે એટલો મોટો સ્કોપ સુરતમાં જ હતો. એટલે એમણે ગલીએ ફરીને સોસાયટી એટલે આપણે તો ત્યારે એ વખત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોસાયટીઓ ચાલતી હતી, ગાળા હતા 16x75ના 16x80ના. એ ગાળા સોસાયટી ફરીને શેડ ટુ શેડ ફરીને દરેક જણને એમને કન્વિન્સ કર્યા છે કે ભાઈ તમે આ શટલ રૂમમાંથી બહાર નીકળો અને રેપિયર છે કે વોટર જેટ છે કે એરજેટ ત્યારે નહોતા, રેપિયર અને વોટર જેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો. તમે કહેતા હો તો એમ કે હું તમને સ્ટેમ્પ પેપર પર લખી આપું, ખોટ જાય તો હું ભરપાઈ કરીશ. આવું કહેવાવાળું કોણ મળે તમને સુરતમાં? એટલે એમનું જે વિઝન હતું, એમનું જે ફ્યુચર પ્રોજેક્શન હતું ખૂબ જ હતું. ને પછી તો તમે જોવો લો આપ જે હિસ્ટ્રી થઈ ગઈ આપણા સુરત માટે કે પૂરા ઇન્ડિયામાં લગભગ સમજો કે 2.5 લાખ લૂમ્સ છે હાઈ સ્પીડ વિંગ મશીન. હવે એમાં 1.5 લાખ તો સુરતમાં જ છે, એટલે મોર દેન 60%. અને સુરતની બાકીની બધી બી ઇન્ડસ્ટ્રી છે કે તમે કહો કે ભાઈ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે કે પછી આપણી ડાઇંગ છે, ઇવન ડિજિટલ પ્રિન્ટિંગ છે, એમાં બી એમનો ખૂબ ફાળો છે. એટલે વર્સેટાઇલિટી છે અને એમને જે સ્ટડી કર્યું છે એનો પૂરો ઉપયોગ કરીને આખી ઇન્ડસ્ટ્રીને એટલે ઇનફેક્ટ પછી તેઓ જ્યારે ટેક્સટાઇલ કમિશનર ઓફિસમાં ગયા એટલે બધી સ્કીમ ફોર્મેશનમાં એમનો મોટો ફાળો છે. બધી જ આપણે ત્યાં જેટલી બી સ્કીમ આવી અને એમાં જે એમેન્ડમેન્ટ આવ્યા અને છેલ્લે પણ રિટાયર થયા પહેલાં એક આખી નવી સ્કીમ મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટેક્સટાઇલ દિલ્હી આપીને આવ્યા છે. અને જ્યારે રિટાયર થયા પછી એમણે એક્સટેન્શન પણ મળ્યું એડવાઇઝર તરીકે અને એ જ પીરિયડમાં એમને આખી નવી સ્કીમ આપીને આવ્યા છે. જોઈએ હવે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે તો એ બી આપણા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે. હવે આપણે અબાઉટ ધ પ્રોગ્રામ વાત કરીએ તો ફ્યુચર ઓફ ઇન્ડિયાઝ ટેક્સટાઇલ પોલિસી એન્ડ સુરત રોલ ઇન ગ્લોબલ વેલ્યુ ચેન. એટલે ઇન્ડિયા ટેક્સટાઇલ પોલિસી તો મેં જેમ કહ્યું તો પોલિસી બધી ડ્રાફ્ટ થઈને છે. અત્યારે જે કંઈ બી પોલિસી એક્ઝિસ્ટિંગ છે એ વિશે વાત કરશે સર. અને આજે જે આપણે GFRRCનું જે આ ટેક્સટાઇલ વીકની સિરીઝ છે એ વર્ષો પહેલાં આપણા મુન્દ્રાજીનું ડ્રીમ હતું અને એમણે આ ટેક્સટાઇલ વીક ચાલુ કર્યા પછી તમને એક્ઝામ્પલ આપું તો આજે તમારો આપકા એ જો નિટિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એમાં બહુ ખાસું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવેલું. એક વખત વર્મા સાહેબ જ કદાચ એ ટાઈમ પર સ્પીકર હતા અને એમણે તો ત્યારે એમણે જે પ્રેઝન્ટેશન આપેલું અને પછી તો આપણી નિટિંગ સર્ક્યુલર નિટિંગનો તો પછી ઇતિહાસ થઈ ગયો. એટલે આવા બધા પ્રોગ્રામ કરવાથી શું લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ છે, આવા આપણે લર્નેડ સ્પીકર્સ આવે છે આપણે ત્યાં પ્રોગ્રામનું એ આપવા માટે. અને એટલે પોલિસી જે એક્ઝિસ્ટિંગ છે અને ફ્યુચરમાં કઈ પોલિસી પ્રોબેબિલિટી આવી શકે એ વિશે વાત કરશે. અને બીજો ટોપિક છે સુરત રોલ ઇન ગ્લોબલ વેલ્યુ ચેન. આજે હવે સુરત ખૂબ જ મોટો રોલ પ્લે કરવાનો છે ગ્લોબલ વેલ્યુ ચેનમાં. કારણ કે આજે તમે MMFમાં આપણે આખા ઇન્ડિયાનું 65% MMF આપણે બનાવીએ છીએ અને બીજું જે છે તે ચાઇના બનાવે છે. હવે ચાઇનાને આપણે અત્યારે સુધી ધારો કે જે યાર્નથી લઈને ગ્રે સુધીનું જે કોસ્ટિંગ છે અને કોમ્પિટિટિવનેસ છે આપણે ઓલમોસ્ટ મેચ કરીએ છીએ. પછી આપણે થોડું આપણે વીકેસ્ટ લિંક થોડી પ્રોસેસિંગની છે, ગાર્મેન્ટિંગની છે, પણ એ બી આપણે ઓવરકમ કરી શકશું. અને સુરતને જ બહુ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળવાની છે આગળના પ્રેઝન્ટેશનમાં સાહેબે બી આપેલું હતું, અમે પણ આપેલું હતું કે MMF ટેક્સટાઇલનો જે ગ્રોથ છે એટલે આપણો જે પર્સન્ટેજ શેર છે ગ્લોબલી એ 2030 સુધીમાં ધારો કે કોઈ સેક્ટરમાં 2% છે તો એ 6% થવાનો છે. એટલે 300%નો ગ્રોથ 5 જ વર્ષમાં. કોઈ સેક્ટરમાં 500%નો ગ્રોથ છે અને એ MMF સેક્ટર આખા ઇન્ડિયાનો ગ્રોથ છે. પણ આખા ઇન્ડિયાનું 65% આપણે બનાવીએ છીએ તો એનો બેનિફિટ આપણે લેવો જોઈએ. આપણે નહીં લઈશું તો બીજું કોઈ ક્લસ્ટર લઈ જશે.
આજે તિરુપુર પણ એવું એ લોકોના જે બાયર છે, જે કોટન બેઝના બાયર છે, એ લોકોને કહી દીધું છે કે ભાઈ હવે અમારે પણ MMF બેઝમાં આવવું છે અને તિરુપુરને MMF બેઝમાં આવવું હોય તો સુરત પાસેથી સોર્સિંગ કરવું પડે અથવા તો સુરત પાસેથી એ લોકોએ ઘણું શીખવાનું છે અને આપણે તિરુપુર પાસેથી એક્સપોર્ટનું શીખવાનું છે. તો આ બધી જ બાબતમાં બહુ ડિટેલમાં વાત કરશે. હું વધારે સમય નથી લેતો અને હવે વર્મા સાહેબને વિનંતી કરું છું કે તેઓ એમનું પ્રેઝન્ટેશન આપે. અને બીજી એક ખાસ વાત કહેવાની રહી ગઈ, વર્મા સાહેબ કદાચ આ ચેમ્બરમાં એમનું 50મું પ્રેઝન્ટેશન હશે કે એના કરતાં વધારે. દર વખતે ઓછામાં ઓછા 6 થી 12 કલાક બગાડીને પ્રેઝન્ટેશન જે લેટેસ્ટ અપડેટ હોય એ આપણે ત્યાં પ્રેઝન્ટ કરે છે. એટલે ખૂબ જ વેલ્યુએબલ પ્રેઝન્ટેશન હોય છે. એટલે એમને પ્લીઝ સિરિયસલી એ કરજો, એમાંથી લઈ જજો. અને આપણે પાસે એક્ઝામ્પલ હોવા જોઈએ કે વર્મા સાહેબનું પ્રેઝન્ટેશન જોઈને, જેમ હમણાં મેં નીટિંગની વાત કરી, બીજી 5 ઇન્ડસ્ટ્રી નવી આવી. થેન્ક યુ. आपने जितना मेरे बारे में बोल दिया, अभी तो लोग बाग सोच रहे होंगे कि शायद पता नहीं कौन सी चीज मिल जाए जो है. मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चीज दे जाऊं हर बात की, लेकिन जो यहाँ भीड़ है उससे लगता है सब लोग सुखी हैं, किसी को कुछ आगे करना नहीं. नया जानना होता है तो लोग दौड़ के आते हैं कि भाई क्या नया होने वाला है, और हमें, मेरा हमेशा कहना है, वो जरूर जानते रहना चाहिए. भले ही आज आप संतुष्ट हैं, जो आज है वो कल नहीं होगा. बदलाव हमेशा संसार का शाश्वत नियम है. तो अपने दोस्तों से, सबसे जो नहीं आ पाए हैं, जो चैम्बर एक काम अच्छा करता है, हो सकता है कि शादियां बहुत चल रही हैं, लोग नहीं आ पाए. अगर अच्छा लगे प्रेजेंटेशन, इसका वो YouTube भी बनाते हैं चैम्बर वाले, अपने दोस्तों को रिफर करो कि एक बार जरूर देख लें. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चीज आज मैं ज़्यादा आप लोगों को डाटा, जो भी आशीष जी बता रहे थे कि डाटा दिया था, बताया, आज मैं डाटा में ज़्यादा नहीं उलझाने वाला हूँ. आज रियल कोर वास्तविकता पे लेके आता हूँ कि चीज़ें कैसे हैपन होने वाली है और कैसे सूरत, अगर थोड़ा सा अभी से ध्यान दिया जाए तो आने वाला समय सूरत का ही है और किसी का नहीं है इंडिया. ये मैं गारंटी से बोलता हूँ. अभी शायद यहाँ आज पॉलिसी का टॉपिक्स है, तो मैं जब पॉलिसी के ऊपर देख रहा था तो लकीली एक मुझे डॉक्यूमेंट मिला कि भारत सरकार ने 2024 में टेक्सटाइल पॉलिसी भी अनाउंस की. तो मैं खुद बड़ा सरप्राइज हुआ कि 2024 तक तो मैं भी एक पार्ट था. तो पॉलिसी कब अनाउंस हो गई और किसी को मालूम भी नहीं. और जब मैं मिनिस्ट्री की साइट में गया तो वहां कोई ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिला नहीं, बट मीडिया में मुझे दिखा कि टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस हुई. लॉन्च डेट भी मैंने इसीलिए ब्रैकेट में डाला हुआ. हालांकि ये जो चीज पॉलिसी में जो डॉक्यूमेंट्स है, थोड़ा मॉडिफाइड टर्म है जो 2013-14 में तैयार थी लॉन्च होने के लिए. उसमें थोड़ा सा उन्होंने नयापन लगा करके पॉइंट डाले हैं. बट मेरा कहना है कि अगर रियल में भारत सरकार या किसी चीज को आगे बढ़ना होता है तो एक पॉलिसी टर्म्स, लॉन्ग टर्म पॉलिसी टर्म्स डिक्लेयर करना चाहिए. सो दैट उससे क्या होता है कि पॉलिसी अनाउंस होती, जैसे 1985 में पॉलिसी, पहली टेक्सटाइल पॉलिसी आई थी, इसके बाद 2000 में टेक्सटाइल पॉलिसी आई. वो पॉलिसी गाइड करती कि नेक्स्ट 10 साल या 15 साल किस तरह से दिशा में आगे बढ़ना है, कहाँ ले जाना है. जो बार बार डिमांड होती है कि कंसिस्टेंस पॉलिसी चाहिए देश को आगे बढ़ने के लिए. तो देश को आगे बढ़ाने का है तो एक कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी होना चाहिए. क्योंकि एक पॉलिसी बनती है तो उसी से रिलेटेड फिर नोटिफिकेशन, आपकी जो भी आगे चीज़ें हैं, बेनिफिट क्या देना है, किस तरह से देना है, वो गवर्न होती है. मैं क्यों ये डॉक्यूमेंट रखा, दो मैं बताया कि आपको मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि इट इज़ ए डिक्लेयर डॉक्यूमेंट, लेकिन इसमें जो पॉइंट है वो फ्यूचर इसी में नजर आने लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है. अब सरकार सोच रही है प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, उनका एम है, मतलब उससे जो भी आगे की नोटिफिकेशन आएंगी या गाइडलाइंस आएंगी या नई स्कीम आएंगी, वो 3 पॉइंट के ऊपर कवर होंगी: प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट. प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी मीन्स वो भारत सरकार की अकेले जरूरत नहीं है.
वो जरूरत है विश्व की, यूएन के मैंडेट में है कि कितने परसेंटेज तक ये लेके आने का है। जैसे एक वाटर के कंजम्पशंस के ऊपर उन्होंने बोला हुआ है कि आपके जो आज वाटर रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसमें आपको 30% कट प्रूव करना ही करना है। इसी तरह यान के ऊपर उन्होंने बोला हुआ है कि जो भी रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसमें 30% रिसाइकल्ड मटेरियल आपको लेके आने का। अब उससे रिलेटेड पॉलिसी क्या होगी वो मैं बाद में आपको आऊंगा, नहीं तो मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस में बात कर लूं। इनोवेशन, बिना नया प्रोड्यूस किए हुए, नया बदलाव किए हुए, आप सेम कपड़ा आप खुद देख रहे होंगे, जो भी वीवर भाई या हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज जो कपड़ा 10 साल पहले बनाते थे वही क्वालिटी अभी चल पा रही है? नहीं चल पा रही, आपको नया मार्केट में देना पड़ेगा। सो इनोवेशन एक सतत नियम है, तो उस इनोवेशन R&D के लिए गवर्नमेंट करेगी, कुछ ना कुछ स्कीम ला रही है। तीसरा इन्वेस्टमेंट, जो मुझे मालूम है, मैं बाद में एक स्लाइड में रखा हूं कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सरकार क्या सोच रही है, वो शायद आप लोग साथ अभी जल्दी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी चले। ऑब्जेक्टिव पॉलिसी की इन्होंने रखी हुई है अगेन, स्किल डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, 2 और इन्होंने इसमें जोड़ दिए ऑब्जेक्टिव्स में। वैसे आप ध्यान से सुनिए, ये सारा प्रेजेंटेशन मैं चैम्बर में ही छोड़ के जाता हूँ, जब चाहिए कॉपी ले लीजिए, घर में आराम से देखिए, है ना। यहाँ सिर्फ अगर आप थोड़ा सा भी ले जाएंगे तो बहुत काम आएगा। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक तरफ हम इनोवेशन की बात करते हैं, इस एक तरफ गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट बोलता है कि 4.0 इंडस्ट्रियल हम इनोवेशन लेके आएंगे। इनोवेशन आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा? वहाँ तो कम होगा। नई टेक्नोलॉजी आएगी तो इनोवेशन कोई भी यंग आदमी या पुराना सोचेगा। वे टेक्नोलॉजी में ऑटोमेशन लाएंगे तो आदमी तो कम चाहिए, यस कम लगेगा। फिर भी गवर्नमेंट ने क्यों रखा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? गवर्नमेंट भी सोच रही है कि आज से कम 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। पॉलिसी खुद बोल रही है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके लिए उन्होंने स्किल डेवलपमेंट साथ में रखा हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी वो उसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन में क्या करने वाले हैं वो भी मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। स्ट्रेटेजिक फोकस एरिया में वो क्या बोल रहे हैं, स्मार्ट एंड टेक्निकल टेक्सटाइल। नो डाउट टेक्निकल टेक्सटाइल्स आज से 10 साल से गवर्नमेंट बोल रही है कि दिस इज द फ्यूचर, जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे उसकी वजह से हमारा जो डेली वियर्स के टेक्सटाइल्स है वो कम हो जाएंगे, वो अपनी अहमियत है। इंजीनियर्स में क्या है कि बहुत वैल्यू, लेकिन उसमें वही है, वही वो लोग जा सकते हैं, वहाँ केवल एक ही चीज होती है, आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। बीच का नहीं होता कि चलो कुछ सेकेंड बन गया तो वो भी चला जाएगा मार्केट, बीच वाला कुछ एक्सेप्ट और रिजेक्ट, 2 ही चीजें होती है। एंड लास्ट में सपोर्ट फॉर MSME, बड़ा अच्छा जो है अभी एक एनवायरनमेंट बना है कि MSME एज ए होल गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा आ गया है। अभी रिसेंटली उन्होंने फीडबैक भी लिया, चैम्बर ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, आशीष भाई लीड कर रहे थे पूरी टीम को, और उन्होंने वो नहीं बताएंगे लेकिन मुझे जो मालूम है कि जो टोटल MSME की जो फीडबैक गई है गुजरात से अपने, उसमें अगर समझो कि 12 पॉइंट उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं सारी इंडस्ट्री के, उसमें 4 पॉइंट तो अपने SGCCI के हैं जो आशीष भाई की लीडरशिप में गए। तो मेरा ये कहने का है कि जो भी गवर्नमेंट फोरम्स आ रहे हैं उनके सामने अपनी बात रखिए, अपने आप को कहाँ दुखती लग है वो बताइए, तो सोल्यूशन मिलेगा। मैं क्या देख रहा हूँ, जब मैं 1-1.5 साल से सब चीज़ों से एसोसिएट हो रहा हूँ, जब से मैं गवर्नमेंट से बाहर आया हूँ, सरकारी लोग आपके पास आते हैं और आप लोग गायब हो जाते हैं। MSME में कुल मिला के अगर वो आशीष भाई या इनकी टीम ने ही कुछ काम किए होते पहले से, तो मुझे नहीं लगता कि टेक्सटाइल में भी कोई अच्छा फीडबैक गया होता। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, थोड़ा सा धंधे में से 1-2 घंटा निकालो और दौड़ के जाओ, बताओ कि साहब यहाँ मेरे को दुख रहा है, अगर ये आप सही कर दोगे तो हमें अच्छा मिलेगा। सुनने के लिए तैयार है सरकार, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप लोग यूज करिएगा। और लास्ट में उन्होंने, देखिए मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सबसे ओवरऑल उन्होंने विजन में क्या रखा हुआ, इंडियन टेक्सटाइल टू बी रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। किसके लिए? क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। 3 चीजों में पूरा सार है, क्वालिटी,
भले ही QCO निकल गए हैं, लेकिन क्वालिटी आपको आगे हमेशा कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट में नहीं रह पाएंगे। सस्टेनेबिलिटी अगेन एस्पेक्ट है कि आपको भले ही धीरे धीरे सीखो सस्टेनेबिलिटी कैसे आपके प्रोसेस में लाना है। आज से आप प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट 5 साल में तैयार होंगे। तो सस्टेनेबिलिटी एंड कम्पिटिटिवनेस तो हमेशा से रहा है। अभी आशीष भाई बोल रहे थे कि चाइना के सामने हमारी कम्पिटिटिवनेस तैयार है, सब्जेक्ट टू हमें रॉ मटेरियल मिले उस तरह का। मैं भी इसी कॉन्फिडेंस से बार बार बोल रहा हूँ कि अगर रॉ मटेरियल हमें दुनिया का बेस्ट रॉ मटेरियल दे दो तो हमारे लोग तैयार हैं किसी भी प्राइस को compete करने के लिए, किसी भी क्वालिटी को compete करने के लिए, किसी भी नए प्रोडक्ट को compete करने के लिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आगे की सोच है। तो जो पॉलिसी आगे सरकार की आएगी, भारत सरकार की, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के सामने ही वो पैसा देने वाले स्कीम बनाएंगे। दूसरा विजन सरकार का जो आपने सुना होगा, कई फोरम में पेपर्स में भी आता रहता है कि अगर हम 2025 में 138 का अगर डोमेस्टिक मार्केट है, वो डोमेस्टिक मार्केट ये बता रहे हैं कि 2030 तक हम 250 USD बिलियन पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि ये बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ बनाया होगा। सरकार में चीजें होती हैं पूरी कैलकुलेटिव और बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर्स उसमें वर्कआउट होते हैं। मतलब टॉप बॉटम मोस्ट क्या लाइन होगी। अभी रिसेंट टेक्सटाइल कमेटी ने पर कैपिटा कंजम्पशंस का रीजन वाइज सर्वे करके रिपोर्ट, हालांकि उन्होंने पब्लिश नहीं किया है, अप्रूवल के लिए पड़ी हुई है मिनिस्टर साहब के पास में। उन्होंने जो रीजन वाइज सर्वे भी ये डाटा प्रूव करते हैं कि हम बहुत ही कम ग्रोथ से भी अगर टेक्सटाइल बढ़ेगी तो भी 250 बिलियन 2030 तक पहुंच सकते हैं, सब्जेक्ट टू MMF उसमें भागीदार बने। बॉटम लाइन जो एक बोलते हैं ना कि छोटा सा एक लगा करके बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज राइडर। तो टर्म्स एंड कंडीशन उस स्टडी का ये है, सब्जेक्ट टू MF इंडस्ट्री हैव टू सपोर्ट फॉर इट। और MMF इंडस्ट्री कौन सपोर्ट करेगा? हमारा सूरत। तो बी रेडी टू एक्सप्लोर द न्यू मार्केट। मार्केट की कोई कमी नहीं है, हमारा प्रोडक्ट आपको बनाने का मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। और एक्सपोर्ट का भी टारगेट, जो आज हमारा एक्सपोर्ट 38 भी नहीं है, उसको बढ़ाना चाहते हैं 2030 तक 100। आज ही कुछ पॉलिसी सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए पे अनाउंस की है, हालांकि मेरे पास वो टोटल उसकी आउटलाइन नहीं आई है तो अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरी जो बात हो रही थी दिल्ली से कि अभी एक्सपोर्ट पर्पस के लिए भी वो कर रहे हैं। तो टोटल कैलकुलेशन अगर हम इसको जाते हैं तो जो हमारा जो बार बार बोल रहे हैं कि अगर MMF को सपोर्ट करना है तो MMF में सरकार को 2 काम पहले जरूर करना होगा, जो हम बार बार बोल रहे हैं उनके सामने आशीष भाई और हम सब लोग मिलके, कि या तो हमें इंटरनेशनली जो क्वालिटी है वो आने दो, रॉ मटेरियल में कोई रिस्ट्रिक्शन मत रखो, या यहाँ के लोगों को बोलो कि अभी जो उनका 4.4 कैपेसिटी है लेकिन बना कितना रहे 3.4, वो 10 बिलियन उनको बनाना पड़ेगा अगर 250 पहुंचना है। मतलब यान स्टेज में भी उनको काम करना पड़ेगा, वो हमें कंटिन्यूअस अपनी तरफ से सरकार को भी जगाना पड़ेगा, लोगों को भी जगाना पड़ेगा ये काम कि भाई हम तैयार हैं, लेकिन 2 चीजें, आइदर ये दे दो या वो दे दो। उनको जो पैसा देना है, जो करना, स्कीम बनाना दे दो, लेकिन लेके आओ, हमें भारत देश को अपना मजबूत बनाना है। अभी एक और अपॉर्चुनिटी, कई बार हम लोग अपॉर्चुनिटी मैंने देखा मिस कर जाते हैं, हमारे ICAR हुए लेकिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस की। कॉमनवेल्थ गेम अनाउंस हो गए अहमदाबाद में 2030 में। सोचो क्या मार्केट आने वाली है। मैंने ये बहुत कम आइटम लिखे क्योंकि स्पेस खत्म हो गया, क्या क्या लगेगा, सब कुछ आप बना के देने वाले, अगर तैयारी अभी से कर लो तो। मार्केट ही मार्केट है, लेकिन उनके लिए जो है बनाना अभी से चालू करो, और इसमें क्वालिटी सब आएगी, सस्टेनेबिलिटी एंगल्स भी आएगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में यूके मतलब महारानी के अंडर में जितने उस समय देश हुआ करते थे वो सभी हैं, और EU ने ऑलरेडी पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी की अडॉप्ट कर ली है, यूके भी वही पॉलिसी अडॉप्ट करने वाला है, तो सस्टेनेबिलिटी एंगल्स भी उसमें रहेगा।
मैं इसके लिए बोल रहा हूँ अभी से प्रैक्टिस चालू करो, मार्केट आपके सामने आगे खड़ी हुई है। ये सारे चीजें हैं, आप लोग बनाते हो, लेकिन आपको उनकी रिक्वायरमेंट क्या है अभी से समझो, तब आप 2 साल बाद पहुंच पाओगे वहां पे। और ये सप्लाई ऑलरेडी लोग आप लेना चालू करेंगे। अब आप एक एग्जांपल देता हूं, मैंने पहला बोला है कि फ्लैग का, फ्लैग में नेशनल फ्लैग ऑफ ऑल कॉमनवेल्थ ग्रुप, हर घर तिरंगा अभियान चला था, कितना कपड़ा गया लोगों का सूरत ने दिया मालूम है मुझे। तो जब समझो एक कंट्री के तिरंगे में इतना गया कपड़ा, तो कॉमनवेल्थ गेम में कितने झंडे लगेंगे और कितना जाएगा मार्केट। एक ही मैंने आपको कंपोनेंट बताया। और सरकार ने सर कोड चेंज किया, अदरवाइज अर्लियर कॉटन ही अलाउड था। हाँ। नहीं, अभी तो सबके लिए पॉलिस्टर, इसीलिए बोल रहे हैं नॉर्म सभी से समझना चालू करो। अगर तिरंगा के लिए उन्होंने एक कोड चेंज। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो मैं सस्टेनेबिलिटी की बोल रहा था, उससे रिलेटेड जो यूएन्स के रिक्वायरमेंट है, उनके 5 एस्पेक्ट के ऊपर है, वाटर, एनर्जी, रॉ मटेरियल्स एंड वेस्ट। इसमें जो पॉलिसी शिफ्ट होने वाली, जो वो लेके आने वाले हैं, प्रमोशन ऑफ वाटरलेस डाइंग, जो कम एफ्लुएंट जनरेट करें। देयर आर द टेक्नोलॉजी, जो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, अगर हमारे प्रीवियस के आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड की क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मैंने GFRC के प्रोग्राम में ही बताया था। एनर्जी अगेन, पुश टू सोलर, रिन्यूएबल ऑप्शंस। अब इसमें क्या क्या आएंगे, अभी जैसे बात चल रही थी यूनिडो के साथ में जो हमने स्टडी करवाई थी, तो सोलर बेस इवन दो बॉयलर्स भी आ गए हैं, और भी कई कई चीजें आ गई, तो उनको आप कैसे करोगे। और मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑप्शंस पे अगर वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे आप जाओगे, तो नेक्स्ट ईयर से आपको कार्बन क्रेडिट पॉलिसी भी आ रही है, आपके लिए वो भी एक मार्केट तैयार है। करना सीखना आपको पड़ेगा, कैसे करना है वो हम सब सिखा सकते हैं, करना आप ही को पड़ेगा। रॉ मटेरियल, इंसेंटिव्स फॉर रिसाइकल फाइबर, एक आप ये मान के चलिए जो भी नई पॉलिसी स्कीम आएगी उसमें रिसाइकल फाइबर्स बनाने के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्कीम प्रोविजन जरूर बनाएगी। तो जो लोग भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं अभी से बना के रखिए, मुझे लगता है कि 5-6 महीने में एक पॉलिसी अनाउंसमेंट होने वाली है भारत सरकार की कि रिसाइकल फाइबर्स की, एंड वेस्ट रिसाइकलिंग उसी से रिलेटेड आ जाती चीजें। ये और एक इम्पोर्टेंट भारत सरकार का जो एक होता है ना कि बातें क्या चल रही है और बातों से ही चीजें निकलती हैं। तो 5th जो TSG टास्क फोर्स सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो सरकार ने बनाई, 11 नवंबर को जो उसकी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने पॉइंट जो मैंने अभी पहली स्लाइड बनाई उसी से ही रिलेटेड उनके कंक्लूजन्स हैं कि ये करना चाहिए। और वो कंक्लूजन्स मतलब सारी स्कीम जो पॉलिसी आप पूछ रहे हैं ना कि क्या पॉलिसी आगे आएगी, ये पॉलिसी सब घुमा फिरा के इन्हीं बातों के आसपास घूमेगी। इसमें केवल एक मार्के की बात है जो मैंने 2022 से एज ए टेक्सटाइल कमेटी सेक्रेटरी सरकार को बोला था, और अभी हमारे अग्रवाल जी भी बोल रहे थे कि बाहर के सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं और वो हमारा सारा पैसा ले जाते हैं, सारी इफिशियंसी ले जाते हैं और हमें वेट करना पड़ता है। उसके लिए अब सरकार तैयार हो गई। लास्ट पॉइंट अगर देखें, इंडियन सस्टेनेबिलिटी मार्क, फिर भी अगर वो आज से चालू करना चालू करेंगे, मैंने 22 से ये दिया था उनको पूरा ड्राफ्ट बना के किस तरह से स्टार रेटिंग होगी और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस उसको किस तरह से यूएन पे आप लेके जाके कर सकते हो सकता है ISO में हो सकता है, तो इसमें भी हो जाएगा, बट इट विल टेक्स टाइम। 2-2.5 साल कम से कम लगेगा अगर सरकार आज से काम करना चालू करती है तो इंडियन सस्टेनेबिलिटी मार्क्स आ जाएगा। तो वैसे जेड है MSME का, बट इट इज नॉट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जेड पैरामीटर्स में अगर गोल्ड के जेड पैरामीटर जो MSME की स्कीम है, अगर वो आप लोगों ने एडॉप्टेबिलिटी अभी से कर लिया तो आपको इजी हो जाएगा आगे इस चीज को पाने में, जो इंटरनेशनल कोई भी सर्टिफिकेशन में आप जा सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के स्टैंडर्ड उन्होंने बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए। ये MMF स्टडी रिपोर्ट तो ऑलरेडी हमने बात कर ली है, 2019 की थी। उन्होंने जो चीजें दिया था सरकार कुछ मानी, कुछ अभी तक नहीं मानी। ये एक स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मैंने डाटा दिए हैं यहाँ पे।
दुनिया जा रही है, वो मैं एक स्लाइड आऊंगा आपको। दुनिया जा रही है कि जो अभी आशीष भाई बोल रहे थे कि 65 MMF है, 35 या 70 MMF मतलब सिंथेटिक है और 30 आपका नेचुरल फाइबर्स है। हमारे यहाँ अभी भी देख लो MMF गारमेंट का कितना एक्सपोर्ट में 57%, 28%, लेकिन CAGR पे आप फिगर डालिएगा, ग्रोथ रेट किसकी है? MMF में 6%। इतना सारा QCO का लफड़ा था, यान नहीं थे, उसकी वजह से गारमेंट के फैब्रिक नहीं बन पा रहे थे, तब भी ग्रोथ 6%। अब तो QCO हट गया तो डबल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो। ठीक है। दूसरा इंपोर्ट का डाटा अगर नहीं करोगे तो सिंथेटिक गारमेंट की इंपोर्ट की स्पीड बढ़ रही है 18% से भी, नहीं करोगे तो बाहर वाले ले जाएंगे। 3/8 सामने है, अपॉर्चुनिटी है तो 3/8 है, इसके लिए तैयारी करो। वहां पे हम कॉटन में बोलते थे कि भाई हम कॉटन में महान हैं, कोई हमें हरा दे, हर जगह प्लेटफॉर्म में सुनता हूं तो महान है तो 9% गारमेंट मतलब 9% CAGR से इंपोर्ट क्यों हो रहा है कॉटन का, कॉटन गारमेंट्स का, है ना? तो यहां मैं वही बोल रहा हूं कि अगर आप नहीं तैयार हुए तो, क्योंकि यंग जनरेशन को ब्रांड चाहिए और ब्रांड को आप नहीं सप्लाई करोगे कोई दूसरा देश करेगा। तो तैयारी आपको करनी है और कि भाई हमारी तैयारी है, आप इसको लेके जाइए, सरकार सुनने को तैयार है। इंडिया का भी देख लीजिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म में क्या है। AEPC का ही डाटा एक स्टडी का है 2024 में, उन्होंने बोला था कि टॉप 20 हाई डिमांडेड RMG जो है EU में जो जा रहे हैं 20 में से हम सिर्फ 2 सप्लाई कर पा रहे हैं, फिर बोलते हैं हमारा एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है। 20 में 10 तो कम से कम लाना पड़ेगा नेक्स्ट 3 साल में। तो ग्रोथ अभी आपका इंतजार कर रही है, तैयारी हमको मिलके करना है। यान चाहिए, कपड़े चाहिए और उसके रिलेटेड गारमेंट कैसे उसको बनाया जाए। गारमेंट की एक अलग साइंस है, मैं बार बार बोलता हूँ, गारमेंट जो डालने की सोच रहे हैं टेक्सटाइल वाले नहीं करें, उनका फ्रेश बच्चा है उसको सिखा के अलग डलवाइए। टेक्सटाइल जो जिसके दिमाग में वो गारमेंट की तरफ उसका ध्यान जाए, बोले ये गारमेंट क्या है, बनते स्टिचिंग करना है ना। गारमेंट बनाना भी एक अलग साइंस है, हमें भी नहीं मालूम था। मैं जब उसके अंदर गया तो मालूम पड़ा इवन तो बटन और काज की भी 10 तरह की टेक्नोलॉजी है। तो जब तक आप उसको समझेंगे नहीं फ्रेश माइंड से, तब तक आप उसको क्या बोलेंगे, अरे ये तो छोटा चीज है, हमने इतना बड़ा कपड़ा बना लिए, इतना धागा बना लिया, तो गारमेंट क्या है, वो तो कोई भी बगल वाला टेलर सिलाई कर देता, उसको ले आएंगे कर देगा, नहीं हो पाएगा। और खास तौर पे MMF में, कॉटन में एक बार चल भी जाए तो जो बच्चे यंग आ रहे हैं आपके, अगर आगे जनरेशन में जाने का है तो आप उनको अभी से लगाइए। और गारमेंट में बिजनेस है, मैं लिख के देता हूँ। जो आशीष भाई बोलते थे एक समय में सटलनेस के लिए बोलता हूँ, गारमेंट के लिए बोलता लगाओ, नहीं लगे तो आप मेरे पास आके बैठ जाना कि साहब माल बिक नहीं रहा है, अभी से बोलो लगाओ। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन उसकी अगेन समझ के थ्योरी है, साइंस है। इसमें अगर निटवियर में भी देखेंगे, निटवियर में यूके FTA में भी अगर हम देखें कि एक्सपोर्ट जो है हमारा कितना पोटेंशियल है अभी, तो मैं 2 चीजें बोल रहा हूँ कि वोवेन के साथ में भी आने वाला जो समय है वो हमारी निटवियर इंडस्ट्री का भी सूरत में है। निटवियर रिलेटेड आप गारमेंट बनाना चालू कर दो, नायका के सामने खड़े हो जाइए तनके की, अब हम तैयार हैं, अब आपका ब्रांड ले जाइए, हम सूरत ब्रांड लेके आ गए। और कर पाओगे, मुझे मालूम है, अगर आप लोग एक बार जिद में आ गए तो कर पाओगे, जितना मैं पिछले 36 साल से सूरत को जानता हूँ। चेंजेस वही मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, ज़्यादा इसमें समय नहीं देते हैं। MMF इंडस्ट्री डिमांड, इसमें जो मैंने यहाँ ब्लू कलर करा हुआ है डाटा जस्ट दिखा देते हैं क्यों अभी भी हम बहुत पीछे हैं। ये डाटा देखिए, हम
अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से कंजम्पशंस में बस पीछे हैं। भले हम आज बोले कि हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए, लेकिन पर कैपिटा कंजम्पशन एक आदमी जो कपड़ा पहनता है साल में कितना कंज्यूम करता है उसका डाटा है। तो हम अभी भी अफ्रीकन कंट्री के जस्ट अबव हैं, हमारे से ऊपर कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा। एमएमएफ वैसे ही स्विच ओवर होता चला जाएगा, क्योंकि कॉटन की अब सैचुरेशन आ गई, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इस गैप को अगर कोई आगे बढ़ सकता है तो वो सिंथेटिक ही है, एमएमएफ ही है। इसके लिए बोलते हैं आने वाला समय सूरत के लिए है, सब्जेक्ट टू आप खड़े हो, नहीं तो बाहर वाला आ जाएगा। ये बहुत बड़ा गैप है। देखिए कहाँ हमारा इंडिया का कंजम्पशन है 5.5 ऑल फाइबर्स में पर केजी, और कहाँ यूएस में 36.9, कहाँ हम खड़े हुए हैं अभी। तो डिमांड विल बी देयर, इसके मन में निकाल दिए कि डिमांड सूरत में रहने वाली नहीं। वो लोग ही केवल बोल सकते हैं जो अपने आप में इनोवेशन चेंज नहीं लेके आ पा रहे। इनमें जो टेक्सटाइल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट एक मैं पढ़ रहा था कि उसमें उन्होंने हमारा अभी जो प्रोजेक्शन इंडिया का एमएमएफ का 3.4% अभी डाला हुआ है। बट मेरा ये कहना है कि पता नहीं क्यों उन्होंने ये 3.4% शायद लुकिंग टू द पास्ट एंड देखा होगा। बट मेरा ये मानना है कि अगर इंडस्ट्री सेम वे से क्यूसीओ के बाद में अगर रिस्पॉन्ड करती है तो इट विल नॉट बी लेस देन 12%। अभी भी मानना है जो मेरा कैलकुलेशन है। एक वर्ड का जो मैं देख रहा था कि WTO की रिपोर्ट पढ़ रहा था, यहाँ देखा है कि एमएमएफ गारमेंट जो हमारे कितने बिलियन 170 प्लस यूएस बिलियन के गारमेंट एमएमएफ के कंज्यूम होते हैं। हम 2 बिलियन में भी नहीं है अभी। तो सप्लाई गैप बहुत है, डिमांड ज्यादा है, हमें उसकी आगे तैयारी करनी है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी लोग बोलते थे ना, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम काम कर जाएंगे, पुरानी बात हो गई। अब अपॉर्चुनिटी नहीं, अब जो बायर्स आ रहे हैं बोले हमें हॉलिस्टिक दे दो। कई अच्छे बायर होंगे, आप उनके साथ में बात करोगे ना, जो अच्छे आपके दोस्त होंगे जो कर रहे होंगे, तो उनका बायर वो यही स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि सर पहले बायर बोलता था कि हम क्वालिटी लेके जाते थे, वो बोलता था ये नहीं, या वो क्वालिटी उसका भेज देता था, हम बना के उसको दे देते, वो नहीं। अब वो बोलता था आप यहाँ लेके आओ, क्या हमारे को सप्लाई कर सकते हो। हमें उसके सामने सॉल्यूशन लेके जाने का, भाई ये रख, ये चलेगा। वो बोलता R&D कॉस्ट में भी आप ही करो, वो नहीं करेगा। वो मार्केट नहीं बताएगा, आप बताओ कि ये चीज होने वाली है। इसके लिए बोले इनोवेशन में कंटिन्यूअसली आपको ध्यान देना है। बाकी चलो रॉ मटेरियल के लिए हम सरकार से झगड़ा कर लेंगे, सब चीज से कर लेंगे। बनाना और उसको नया बनाना, नया पल लाना, नई डिजाइन लाना, वो तो आप लोगों का काम रहेगा। सो विनर विल बी दोज जो कंसोलिडेट करेंगे, क्विकली सोचेंगे। ये नहीं कि भाई सूरत में तो सब चल जा रहा है, बद्दू चाले से निकल जाओ बाहर। इससे जीतना है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ बनना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को अपने इन्फ्यूज करो। मैं ये नहीं बोलता कि पैसा नहीं है तो भी टेक्नोलॉजी में डाल दो। देयर आर द वेज कि कैसे पहले मार्जिन कमाए और मार्जिन से फिर बाद में उसी पैसे से आप टेक्नोलॉजी लेके आए। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला कि जेब में पैसे नहीं तो आप पैसा डाल दो। पहले जो एग्जिस्टिंग है उससे पहले पैसा कमाओ। उस एग्जिस्टिंग बिजनेस से आप कैसे प्रमोट हो सकते हैं, इसकी भी एक अलग स्ट्रेटजी। कई चीजें हम बोलते हैं ना कि हमें अपना चेहरा देखने के लिए आईने की जरूरत होती है। अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रहा है इतनी सारी अपॉर्चुनिटी के बाद में, तो किसी एक थर्ड आदमी को लेके जाइए, वो आपको बता देगा यहां थोड़ा आप कमी कर रहे हो, इसको सुधारोगे तो हो जाएगा। तो वो करना सीखना चाहिए, करना पड़ेगा आपको आगे। जो मैं इसमें बात किया कि कॉमनवेल्थ या चाहे तो दूसरे भी रिलेटेड है,
आगे जरूर जो मैं बोला टेक्निकल टेक्सटाइल से ही रिलेटेड आपके आएंगे, फैब्रिक आपको हॉट केक की तरह जाएंगे। आज 28% CAGR है इनकी, मैंने वहाँ 6% CAGR आपको बताया। ये अगर फैब्रिक और इसके बने गारमेंट आप बनाते हो तो फैब्रिक में 28% की CAGR है और गारमेंट में 148% की। कितना? 148%। कभी सोचा है? लेकिन बॉडी में मतलब ये 3 कपड़े जो इस एथलेटिक्स को चाहिए, स्पोर्ट्स में चाहिए कि जो बॉडी टेम्परेचर कर सके, बैक्टीरिया रेजिस्ट कर सके, और बाद में जो सस्टेनेबिलिटी का ऑप्शन है कि बायोडिग्रेडेबल भी हो। तो ये चीज़ों के ऊपर अगर हमें काम करेंगे आने वाले, मैं ये नहीं बोलता इमीडिएट शिफ्ट करो, ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट 10 साल में, अगले 10 साल में हमें क्या करना है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें। फ्यूचर चैलेंज तो ग्लोबल कंपटीशन रहना ही है, डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल मार्केट, ये सब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। स्किल्ड लेबर शॉर्टेज एक जो है, इसमें मेन आपको ध्यान दूंगा। वर्कर्स और वर्कर्स बिहेवियर एंड रिटेंशन ऑफ द वर्कर। जो वर्कर आपके यहाँ आ गया उसको आप कैसे रिटेन करोगे, और एक जो माइंड सेट है हमारे सूरत का कि कांटेक्ट पे तो सारा वर्कर मिल ही जाता है, करना क्या है रेगुलर पे रख के। अब तो सरकार ने नई लेबर पॉलिसी भी बना दी हायर एंड फायर की, अब डर किस बात का है? बट रखो वो लेबर, क्योंकि अगर क्वालिटी कंसिस्टेंट क्वालिटी बनानी है, आपको आगे नए इनोवेशन में जाना है, तो वो जो ग्राउंड फीडबैक है आपका वर्कर ही दे सकता है। जो मैंने खुद, जब मैं इंडस्ट्री में था, मैंने खुद ऐसा किया। गिव द ऑनरशिप टू योर वर्कमैन, वो आपको रिजल्ट देगा, गारंटी है मेरी। आप आज 5 रुपए बचाने के चक्कर में 500 रुपए का लॉस कर रहे हो, मैं बार बार बोलता हूं। स्टार्ट टू गिव द ऑनरशिप टू योर ऑपरेटर, वर्कमैन। आप देखो कल को आपको क्या देगा। बगल वाला या मार्केट में, सूरत मार्केट में अगर कोई उसको मैं बोलता हूँ 20,000 दे रहा है, अगर आपने उसको 25,000 दे दिया, पहली बात तो छोड़ के ही नहीं जाएगा आपके यहाँ से। 5,000 ही ज्यादा दे रहे हो ना आप, लेकिन 5,000 का वो आपको 50,000 का रिटर्न देगा। 100% नहीं, 1-2 हर एक जगह बदमाश होते हैं, उन बदमाश को अलग तरह से टैकल कर सकते हो, लेकिन एवरेज मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया था। आज नहीं, मैं 85-86 की बात बता रहा हूँ। उस समय हमने, वो भी वर्कमैन कौन थे हमारे, अमलेठा के ट्राइबल्स, आप सरप्राइज करोगे। उनको LR की मशीन में ट्रेनिंग देना, उनसे काम लेना, जो पहले दारू पी के सो जाते थे महुए के, उनको काम सिखा करके उनसे काम लेना और उनको क्वालिटी एस्पेक्ट पे लेके जाना। अगर वो सीख सकते हैं तो सूरत में जो वर्कमैन अभी हैं, तो उनसे तो आप मिराकल कर सकते हो। नहीं हो तो यहाँ आशीष भाई ने ऑलरेडी चालू किया हुआ है, रिजल्ट्स और भी लोग आप देख सकते हैं। चीज़ों को करना सीखिए। बाकी चीज़ें तो रेगुलेटरी, करेंसी फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, वो तो हमें आदत डालनी पड़ेगी इन चीज़ों को अपने कैलकुलेशन में लेके चलने के लिए। ओवरकम चैलेंजेस, इसी में हमने चीज़ें बोल दी हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। एक चीज़ और सूरत को करनी पड़ेगी, और हमें भी यहाँ चैम्बर से प्रमोट करना पड़ेगा। एक एक्सक्लूसिव टेक्सटाइल पार्क मशीनरी के लिए बनाना है। 100 करोड़ का करीब इसमें मैंने वर्कआउट किया है कि 100 करोड़ की करीब मशीनें लगेंगी CFC में। चाइना की सक्सेस स्टोरी, जो चाइना बोलते हैं ना कि सस्ती मशीनें कैसे आती हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी इसी स्लाइड में आपकी छिपी हुई है, पूरा है पैटर्न। एक उनके यहाँ CFC है जिसने रिवर्स इंजीनियरिंग किया। मैंने खुद विशाखापट्टनम में मेडिकल के लिए देख के आया था। मैंने हालांकि वो पॉलिसी उसी पैटर्न में भारत सरकार को भी दी थी। अनफॉर्चुनेटली वो स्कीम आगे ज़्यादा क्लिक नहीं हो पाई, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर मिनिस्ट्री टेक्सटाइल मशीनरी नहीं आता है, और हैवी इंडस्ट्री को कुछ पड़ी नहीं है।
तो परस्यूएशन आपको करने का कि आप एक्सक्लूसिव, अगर वाटर जेट आपको जरूरत है, जो प्रायोरिटी आप पहले डिसाइड करो कि वाटर जेट की लेके आने का है, चाइना से इन्वेस्टर आज की तारीख में तैयार है। करना क्या है, सीएफसी एक आप बनाइए। सीएफसी का काम होगा कि सपोज अगर वाटर जेट आप एक एक्सक्लूसिव पार्क बना रहे हो, तो उसमें सपोज 102 पार्ट लगते हैं अलग अलग, तो 102 पार्ट की प्रोफाइलिंग और प्रोजेक्ट कॉस्ट पूरा ये सीएफसी बना के देगा, जो मेडिकल में हुआ। उन्होंने 102 पार्ट या उससे मिलते जुलते अगर होंगे, कम कॉस्ट वाले होंगे, तो उन्होंने क्लब कर दिया है, और वो एक यूनिट एक ही पार्ट बनाएंगे। एग्रीगेटर पार्क में एक ही होगा जो असेंबलर होगा। तो जब आप यहाँ क्या होता है, हमारे भारत में समस्या ये है, कोई भी मशीन मैन्युफैक्चर, मैंने सबसे बात किया, टीएमएमए से भी हमारी बात होती है, करेंगे तो अकेले करेंगे ना, सबके साथ मिलके नहीं करेंगे। सबके साथ मिलके नहीं करोगे तो मशीन की कॉस्ट आप नीचे नहीं ला सकते हो चाइना के बराबर। तो सस्ती मशीन चाहिए, अगर इतना बड़ा मार्केट है तो हमें आज से सरकार से झगड़ना पड़ेगा कि भाई सीएफसी का पैसा आप दे दो, टेक्सटाइल पार्क की जो स्कीम थी उसमें आप वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाने का पैसा दे दो, क्योंकि अभी ये वाला टेक्सटाइल पार्क जैसा हाल नहीं होगी 3 साल से, तो कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं उसके बारे में नहीं जाता हूँ। तो इसके लिए जो प्राइवेटली पार्क डेवलप हुए हैं, थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो ये मैंने मशीन भी आइडेंटिफाई की है, लिस्ट में मशीन से चाहिए तो आपको दिखा देते हैं। एग्जॉस्टिव लिस्ट है इसकी, जो मैंने उस समय सरकार को दिया था, क्या क्या ये मशीनें लगेंगी कॉमन में। ये सारी अलग अलग लिस्ट वाइज मशीनें हैं। तो ये प्रपोजल मेरे हिसाब से तैयार है। अभी भारत सरकार को हमें मिलकर चैम्बर से ये परसुएशन करना पड़ेगा कि ये चीज़ पे आप काम करना चालू करिए, और एक एक्सक्लूसिव आप लेके आएंगे। तो मेरा मानना है कि जो एक हमें बॉदर करती है कि भाई मशीन की कॉस्ट बहुत आती है, तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हमें कैसे उसमें सर्वाइव करेंगे। तो यहाँ उसका सोल्यूशन है। एंड इस सोल्यूशन को अगर हम अचीव नेक्स्ट 3 इयर्स में कर पाए, और ऐसा नहीं, भारत सरकार ने पहले 450 करोड़ रुपए दिया एक एजेंसी को कि शटरलेस लूम डेवलप करो 450 की स्पीड का। उस समय जब दिया था तब 450 स्पीड रेपियर की बहुत होती थी। अब तो हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए इंटरनेशनल। अब वो 6 साल से एक ही राग आलाप रहे हैं कि साहब हमने बना तो लिया लेकिन पेटेंट नहीं करवा पा रहे। तो अगर आपने एक्सक्लूसिव डिजाइन बनाई तो पेटेंट करने में क्या प्रॉब्लम, वो चोरी करके बनाई तो पेटेंट के लिए क्यों वेट कर रहे हैं। फिर तो चाइना थ्योरी की कॉपी करो, बनाना चालू करो। जब झगड़ा होगा तब तक तो हम मार्केट हमारे बहुत अच्छी हो जाएगी, हम कुछ दूसरा बना लें। तो कुछ तो करो आगे बढ़ करके। मेरा यही कहना है, बहाने नहीं कर चलेंगे, अभी करना है तो करना है आगे। इन कंक्लूजन जो यही चीजें जो अभी डिस्कस हुआ, उन्हीं चीज का यहाँ कंक्लूजन है कि एक जो यहाँ पे चीज है, मैंने इसमें जस्ट बोल दिया कि जिसको भी आपको बोलना है, फाइबर वालों को अगर बढ़ाने का सरकार पैसा दे, लेकिन टारगेट दे कि 2 या 2.5 साल में आपका प्लांट ऑपरेटिव होना चाहिए। नहीं तो जितना पैसा दिया वो 18% या 24% इंटरेस्ट के साथ वापस देना पड़ेगा। कंडीशनल लगाओ। चाइना ने यही किया था। लोग बाग गए, क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये चाहिए, ये ले लो, गारंटी। समय के बाद बुलाया, क्या हुआ, एक वार्निंग दिया, नहीं हुआ तो बोला नेक्स्ट बार गोली खाओ। सुधार करना है तो यही करना होगा। टाइम बाउंड दो, पैसा दो। मैं अब नहीं बोलता हूं, हमें अब बोलना पड़ेगा ये सरकार के पास कि पैसा दो, इस चीज के लिए टारगेट बेस्ड पैसा दो, नहीं बढ़ता तो उससे वापस रिटर्न ले लो। प्रेशर आएगा सबके ऊपर, क्योंकि देश के लिए काम करना है, हमें अकेले के लिए काम नहीं करना है, देश को खड़ा करना है। तो देश के लिए खड़ा करना है तो एक इस तरह का हार्ड एक्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें कुल मिला के यही है जो भी डिस्कस करके आए। अब थोड़ा सा सरकार की स्कीम में पीएम मित्रा नहीं आ रहा है, लेकिन शायद कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे। मैंने ये रखा है कि सपोज पीएम मित्रा में तो आप अभी तक सुनते आ रहे होंगे कि भारत सरकार पैसा देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इसके अलावा ये भी है कि अगर आप यूनिट लगाओगे
तो सरकार 3 तरह के उन्होंने कैप रखे हुए हैं कि 300 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट है आपका तो वो 30 करोड़ रुपए मतलब 10% जो एटअप जैसा था कि वो पैसा 3 साल के लिए देंगे। 15 करोड़ 100 करोड़ है तो 15 करोड़ मैक्सिमम एवरी ईयर 3 साल के लिए 5-5 करोड़ देंगे। उन्होंने 3 स्लैब लिखे हुए हैं, इसमें ऑलरेडी प्रोविजंस बना हुआ है। पता नहीं गुजरात में नवसारी वाले कब काम करेंगे। पीएलआई में जो सुधार हुआ है और आज एक नई बात चालू हुई जो मैं चैम्बर को यहाँ बोलूँगा कि नोटिफिकेशन जो नई आई, जो मैंने यहाँ 9/10/2025 का बोला है, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन वो अभी भी वहाँ के बाबू लोग दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं, टर्नओवर तो आपको 200 करोड़ पहुँचाना पड़ेगा अगर क्लेम करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन में नोटिफाई नहीं हुआ। तो मैंने ऑलरेडी आज बात की तुरंत फ़ोन पे, जब मैं आज एक डिस्कशन में गया था, तो वो अमेंडमेंट ला रहे हैं। कई लोग इसके बाद मेरे पास फ़ोन आए, शायद उन्होंने बोला कि नहीं वर्मा जी ने डिस्कस किया है, तो लोग काउंटर कंफर्म कर रहे थे। मैं यहाँ से कंफर्म कर दे रहा हूँ, बात हो चुकी है। 50 में 100 करोड़ का ही टर्नओवर आपको मतलब जस्ट डबल करने का, अंदर 4 टाइम नहीं करना है। हम चैम्बर से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो एक लेटर वो भी अपनी तरफ से भेज दें। मैंने मेटेक्सिल को तो बोल दिया है कि वो उनकी तरफ से परस्यू करें। सो नई पॉलिसी बहुत सिंपल हो गई है। थोड़ा सा मैं अगर वैल्यू एडिशन के ऊपर अगर ध्यान देंगे, जिस चीज़ की डिमांड है आगे, 2 स्टेज आपको इनकॉर्पोरेट करने का है, चाहे यार्न फैब्रिक में करिए, फैब्रिक या डाइंग करिए या गारमेंटिंग पे जाइए। ग्रे फैब्रिक अभी परमिटेड नहीं है HSN कोड में, लेकिन बाकी अगर गारमेंटिंग HSN कोड में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अलाउड हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इसमें मैं बोलूँगा कि अगर लोग आगे यहाँ कंसर्न रहते हैं कि हमारा पैसा कितना रिटर्न होगा, तो अगर आप 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो 2 साल के, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट, 2 साल तो मैंने मैक्सिमम रखा मॉनिटोरियम, अगर आप 1 साल में भी चालू कर पाए तो आपको जो है टोटल 2 साल का, क्योंकि 2030 में एज ऑन डेट में बता रहा हूँ, स्कीम एक्सटेंड भी हो सकती है, 6.5 करोड़ रुपए आपको रिटर्न मिलता है। और इसमें एटअप जैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, आप समझ गए ना, क्योंकि एटअप में आता था केवल कुछ मशीनों के ऊपर, और कुछ मशीनें अगर हम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में 50% मशीन है, उसमें भी कुछ मशीन लेके आते थे तो 30% मशीन बनती थी। तो 30% अगर सपोज 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसमें 30 करोड़ की मशीन ही कंसीडर हुई, उसका 10% आपको 3 मिला, और यहाँ तो 50 करोड़ पे आपको 6.5 मिल रहा है। आप सोच लीजिए ये ज़्यादा बेनिफिशियरी है अगर आप उसके HSN कोड बना पाए तो, ठीक है ना। एक अभी सरकार ने स्कीम, हालांकि वो एक मुद्दे में फंसी हुई है कि यहाँ चैम्बर के पास ड्राफ्ट आ गया और और यहाँ जो है हमारी लोग ऑफिसर बोले कि उनके पास डिटेल गाइडलाइंस नहीं आई, लेकिन ये ज़्यादा नहीं, इसमें 2 कंपोनेंट अपने लिए बड़े फायदेमंद होंगे। एक तो वो कंपोनेंट जो बोल रहे हैं प्रमोट स्टार्टअप एंड हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, इनहेंस सेक्टरल कैपेसिटी, जो 2 चीजें इन्होंने दिया हुआ है। इनहेंस सेक्टरल कैपेसिटी में वो क्या करने वाले हैं, जो यहाँ का पावर लूम सर्विस सेंटर कटारगांव में है, उसको ये अपग्रेड कर रहे हैं। ये अपग्रेडेशन इस लिहाज से कर रहे हैं कि आपको इंडिजिनियस मार्केट लिंकेज बढ़ाने के लिए, है ना। तो एक वो सपोर्ट आ रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है कि सरकार एक बड़ा सेंटर बना देती है, खर्चे भी देती है शुरुआत में, जब कोई सर्विस नहीं लेता है तो सरकार बोलती है इसको बंद कर दो, लोग अपने आप होशियार। तो जो नया इनोवेशन करना है, मार्केट लिंकेज कैसे करने हैं, आज से उनके क्वेश्चन बनाना चालू करोगे, जैसे ही खुले, अपग्रेड हो रहा है, खुला तो हुआ है, अपग्रेड हो रहा है, वहाँ ऑफिसर पोस्टिंग 3-4 महीने में हो जाएगी, आप उस सर्विस का फायदा उठाना चालू करिएगा। दूसरा जो इसी में कर रहे हैं, टेक्सटाइल कमेटी को उन्होंने मैंडेट दिया हुआ है, 6 सेंटर पूरे इंडिया में खोल रहे हैं, सूरत उसमें एक है, उसको मैंडेट दी गई है कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाइए और नए मार्केट एक्सप्लोर करके लोगों को बताइए। तो 2 एजेंसी आपके शहर में इस स्कीम के तहत आ रही हैं, आप उनका फायदा उठाओ और अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जरूर देखेगा।
एनटीटीएम में भी कुछ बचा नहीं है, सारे रिसर्च पेपर जो आईआईटी को दे दिए गए हैं, अच्छा सोचूं कि आएगा। अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स कोई नया सोच रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें सोच रही जा रही हैं, इवन तो मैं बोल रहा हूँ मशीन भी नहीं बनानी है, टेक्नोलॉजी नया बनाना है या कुछ और बनाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक स्कीम है जिसमें आप प्रोजेक्ट का प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट कर दो और वो अगर अप्रूव हो गया तो सिर्फ आपको 5% इंटरेस्ट रेट से जो पैसा मांगोगे मिलेगा, सिर्फ 5% इंटरेस्ट पे। अगर रियल में आप कुछ करना चाहते हो, नए बैठ करके आपको कुछ खोज के लाना है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 4 स्कीम्स मैंने इसमें बताई हुई है, लिंकेज इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। जब मेरा पीपीटी किसी को मिलेगा, नहीं मिले तो मेरे से फोन कर लेना। और बिल्कुल रॉ है, आप अगर आपके बच्चे को आपको बताने का क्या करने का, तो मैंने इसमें बोला myscheme.gov.in, इसमें जा करके आप एक बार करेंगे और आपके डिटेल्स डालेंगे, सारी स्कीम भारत सरकार की, जिस राज्य में आप करना चाहते हो उस राज्य सरकार में क्या स्कीम मिलेगी वो आपको मिल जाएगी। ये स्कीम तो बाकी अभी चल ही रही है। मैंने ये बात ही कर दी कि बीएससी अपग्रेड कर रहे हैं, 6 स्पेशलाइजेशन सेंटर्स, ये सब एटअप जैसी स्कीम भी मैंने ऑलरेडी बताया कि गवर्नमेंट के कंसीडरेशन में है। शायद वो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से 15 दिसंबर तक वो कंसल्ट करने वाले हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर कोई लेबोरेटरी भी लगाना चाहता है तो अभी टेक्सटाइल कमेटी के पास भी है कि इक्विपमेंट वो देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग 50-50 है। ये भी एक, अगर आप वर्कआउट करोगे, कोई अलग से अपना काम क्वालिटी पे करना चाहता है तो वो भी एक बड़ी अच्छी तरह से चीज़ें हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात तो आपको मालूम है, लेकिन जो एरिया है वो आपके आसपास नहीं है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं ध्यान दूंगा। सो मित्रों, अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे खड़ी है और मैं यही बोलूँगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, तैयारी कर लो। आप लोगों के बीच में अब तो मैं हमेशा मिलूँगा, अधिकतर मिलूँगा, हमेशा नहीं, अधिकतर मिलूँगा। आशीष भाई, चैम्बर, ये सब लोगों के साथ हूँ, जो भी दोस्त हैं हमारे, हम लोगों की पूरी एक टीम है। विजन यही है कि आपको अगर हम लोग 10 लोगों को भी खड़ा कर लिए तो ये हम अपने जीवन को धन्य मानेंगे। तो तैयारी आपको करना है, साथ में मिलकर करना है। आओ मिलकर आगे बढ़ते हैं। ફ્રેન્ડ્સ, વર્મા સાહેબે સુંદર પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે, તમને પ્રલોભન પણ આપ્યા છે અને વિચારતા પણ કરી મૂક્યા છે। કઈ દિશા પકડવી, કઈ રીતે આગળ જવું, એટલું આકર્ષક છે, કેટલું સરળ છે એ સમય નક્કી કરશે। તો આ વર્મા સરનું જે પ્રેઝન્ટેશન હતું એના સંદર્ભે જો કોઈ આપના પ્રશ્ન હોય તો પ્લીઝ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન ઓપન કરીએ છીએ અને સમય મર્યાદામાં રહીને એને પતાવીશું। પ્લીઝ। टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के अराउंड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जैसे जो अपने वेस्ट इतना बनाते हैं, हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ वी मेक लॉट ऑफ प्रोसेसिंग बहुत बनते हैं। यहाँ में भी होता है कि हर जगह वेस्ट खत्म नहीं है, वो वेस्ट कंट्रोल है, सबसे हर जगह देखते हैं रास्ते से इतना पॉल्यूशन। तो उसके अराउंड कोई पॉलिसी आ रही है, इन्वेस्ट इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और कैसे उसमें आगे इनोवेशन रिसर्च लोकली किया जा सकता है, क्योंकि बाहर की टेक बहुत एक्सपेंसिव है एंड यहाँ पे हमारे पास खुद के पास वेस्ट है तो उसको मैंने ऑलरेडी स्लाइड में ध्यान दिया होगा। एक सस्टेनेबिलिटी ESG टास्क फोर्स ऑलरेडी भारत सरकार का बना हुआ है एंड ये इसको सर्कुलरिटी को लेकर के 2 एस्पेक्ट हैं, 2 उसमें चीज़ें काम हो रही हैं। एक तो प्री कंज्यूमर वेस्ट एंड पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट। पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट में ऑलरेडी जब मैं था तो वहाँ पे कैसे भी लोगों को कन्विंस करके ये न्यू मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में एक प्रोजेक्ट किया है। मैं अभी लास्ट वीक में वहाँ गया था वीकेंड पे। वो बोलते हैं ना कि पेड़ में आपने बीज डाल के आए थे तो पेड़ कैसा जा रहा है। अब मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है
कि वो जो प्रोजेक्ट जो मैंने सोचा था लगभग उसी दिशा में जा रहा है और बड़ा अच्छा काम कर रही है। खास तौर पे अभी वो एक ट्रायल पे चल रहा है और उस ट्रायल को देख करके बाकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी माइंड बना चुकी है पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट को लेके। उसमें क्या हो रहा है कि घरों से वो कपड़ा लेते हैं, एक पर्टिकुलर उन्होंने बॉक्स बनाया हुआ जैसे फॉरेन में होता है कि आपके यहाँ रख दिया, फोर्टनाइटली एक ट्रक उनका स्पेशल बनाया हुआ है, एक कचड़े वाला नहीं, एक फैब्रिक कलेक्टर्स उन्होंने ट्रक अलग बनाया हुआ है। वो जाएगा, वो बिन में जितने भी कपड़े होंगे लोगों के, और लोगों को ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप ये कपड़ा जो है सैनिटाइज करके डालिए, मतलब धुला हुआ करके डालिएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी गंदा कपड़ा फेंक दिया वहाँ पे। उसको लाके फिर वो वापस सैनिटाइज पहले करते हैं सेंटर में, उसको टेक्सटाइल रिसर्च फैसिलिटी फैकल्टी करके बुलाया, सैनिटाइज करने के बाद में उसकी सॉर्टिंग करते हैं। एक वहाँ मशीन उन्होंने आइडेंटिफाई बेंगलोर बेस करवाई थी जो एक सेंसर बेस है, जो कलर वाइज और फाइबर में क्या ब्लेंड है फैब्रिक में, उसके हिसाब से वो सेग्रीगेट कर देते हैं। उस सेग्रीगेशन के बाद में वो चीज़ों को फिर उसको रिसाइकलिंग में ले जाना है या अपसाइकलिंग में लेके जाना है, वो काम चालू है। और अभी जो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यू मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी ये भी कर रहा है कि वो एक 5 एकड़ लैंड अलॉट कर रहे हैं, एक बिल्डिंग दे रहे हैं, फैसिलिटी इंटरप्रेनर्स को लगानी होगी जो रिसाइकलिंग के लिए। तो जब ये मॉडल एक तरह से खड़ा हो रहा है तो डेफिनेटली आने वाले समय में दूसरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको रिपीट करने वाली है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली 15 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑलरेडी इस चीज़ के लिए तैयारी कर चुके हैं, इंक्लूडिंग सूरत में है। कुछ क्या प्रॉब्लम है मैं खुद बात करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब सेक्रेटरी मैडम आई थी तब उन्होंने यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर को बोला था कि ये फैसिलिटी वहाँ क्रिएट की गई है, आप लोग क्यों नहीं करते, सूरत इज ए बिग हब फॉर इट। तो उससे रिलेटेड अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं दूंगा। और जो मैंने बोला कि प्री कंज्यूमर वेस्ट, क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट तरीका है, क्योंकि आपके पास नीट एंड क्लीन है, आपको मालूम है कि इसमें क्या ब्लेंड है। लकीली सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा 80% आपका पॉलिएस्टर ही रहेगा, बट यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ यहाँ से ले रहे हैं तो इनका ये प्रोडक्ट चल रहा है, तो वो आप सेग्रीगेशन में आपको ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगी। मेन आएगा प्लांट कौन सी टेक्नोलॉजी ली जाए और उस टेक्नोलॉजी को हम कैसे वायबल बनाएं। क्योंकि जो मैंने भी देखा कई बार चीज़ें होती ना कि आपको नॉलेज अगर नहीं होती है तो आप मार्केट में आप खरीदने जाइए, 10 रुपये का घर से सोचिए कि घर से 10 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए निकले और मॉल शॉप में अगर घुस गए तो आप 100 रुपये की चीज़ लेके निकलते हो। वही चीज़ है टेक्नोलॉजी में। सामने वाला अगर समझ गया कि इस बंदे को कुछ मालूम नहीं है, मशीन खरीदने आया, वो सबसे महंगा से महंगा चीज़ आपको चेप देगा। तो मेरा ये कहने का है कि देयर आर द टेक्नोलॉजीज, हम लोग साथ में बैठेंगे, उसके आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ल्ड में क्या बेस्ट है और हमारे लिए इकोनॉमिकल वायबल है। क्योंकि उसके लिए पहले हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। आशीष भाई भी हमारे से काफ़ी 6 महीने से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कितना पहले वेस्ट हमारे पास आएगा, उसका एक रफ एस्टीमेट हमारे पास आ जाएगा, देन बाकी चीज़ें आसान है। फिर हम सारी चीज़ें वर्कआउट करके दे देंगे, ये कॉस्टिंग आएगी, ये उनको आप ऑफर कर सकते हो कि भाई ये रहेगा, इसका ये बिजनेस साइकिल रहेगा, इतना रिटर्न मिलेगा और इतना रहेगा। इवन दो इस चीज़ के लिए SBI फाउंडेशन पैसा देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट, पैसा कहाँ से मिलेगा? SBI फाउंडेशन देने के लिए तैयार है, वो ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट को फंडिंग दिया है। स्कीम आ रही, वो तो मैं बताया ना, भारत सरकार जब तक नहीं आती मैं बोलता नहीं हूँ, बट स्कीम आ रही है, तैयारी कर लो। गुड इवनिंग वर्मा जी। इनफैक्ट सूरत के जो प्रोसेसर उन्होंने जो क्वेश्चन किया है कि भाई द वेस्ट ऑफ सूरत प्रोसेस हाउस, ये सब प्रोसेस हाउस के वेस्ट जो है एक प्रकार का हम लोग चाहते हैं कि जो त्रिपुर ने जो किया था
स्ट्रिक्टली जो उनका 2 साल उनका मिलें बंद रही थी, और फिर जो अभी उनकी जो चालू हुई है और वर्ल्ड लेवल का उनका काम हो रहा है वो, तो वो प्रकार का सूरत का कैसे जाए उस वो लेवल पे। इनफैक्ट यू नो देयर आर लॉट ऑफ कॉस्टिंग इन दैट, आई मीन वो ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड ऑल, प्राइमरी सेकेंडरी एंड मोर देन दैट, वो हमारा सूरत मार्केट वो उसको सहन कर पाएगी कि नहीं, बट त्रिपुर ने तो सहन कर लिया। तो लेट्स सी व्हाट आई जस्ट वांट टू नो समथिंग फ्रॉम यू। खन्ना साहब, 2 चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस ये बोलूँगा कि सूरत और गुजरात इज़ ब्लेस्ड कि आपके जहाँ ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ठीक है, यू पीपल आर ब्लेस्ड, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। थिंक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन कि हम आगे की पीढ़ी के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, कितना ग्राउंड वाटर की क्वालिटी छोड़ रहे हैं और क्या इन्वायरमेंट छोड़ रहे हैं, हमें उनके लिए काम करना है। और उनके लिए काम करना है तो देयर आर द टेक्नोलॉजीज, देयर आर द वेज। कई बार हम दिमाग में रखते हैं, जैसे पहले तिरुपुर भी यही सोचता था कि ये कॉस्ट करेगा, बट आज कॉस्ट नहीं कर रहा, उनको फ़ायदा तो वो भी कमा रहे हैं। और आशीष भाई ने बोल दिया वो आपकी मार्केट छीनने की तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग नहीं जगे तो कॉस्ट हमारे कई बार क्या होता है कि एज ए पर्सन जब हम चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं ना, तो दिमाग में बढ़ता चला जाता है, अरे भाई ये करेंगे तो कॉस्ट बैठेगी। मैं एक उसका एग्जांपल बताता हूँ कि 85 में जब मैंने कैरियर चालू किया था, उस समय किसी भी स्पिनिंग मिल में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नाम की चिड़िया ही नहीं होती थी, कोई सोचता ही नहीं था। जब वो कॉन्सेप्ट हमने एक कैलकुलेट करके मैनेजमेंट को बताया कि भाई अब हम ये करना चाहते हैं, तो पुराने लोग थे वो हंसे, इवन तो हमारे 10-12 साल के सीनियर थे हमारे यहाँ, वो लोग हंसे, क्या कहाँ से इसके दिमाग में पागलपन आ रहा है, ये होता है क्या, इससे कॉस्ट कितनी बढ़ेगी। तब जो आज जो मैं बोल रहा था, तब भी मैंने मैनेजमेंट को बोला मुझे 3 महीना दीजिए, कॉस्ट नहीं निकलेगी, मेरे को लात मार करके गेट पे बैठा देना। 3 महीने के अंदर मैंने अपनी चीज इंप्लीमेंट की, शेड्यूल मेंटेनेंस किया। जो मशीनें से 18,000 आरपीएम पे चलती थी मैंने 24,000, और जो 24-25,000 आरपीएम पे चलती 30,000 आरपीएम पे चलाई। तो मैनेजमेंट को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो ये चीजें होती कि आप कितना कॉन्फिडेंट है उस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। कॉस्ट नहीं लगती है, उसको एक साइंटिफिक तरीका से सोचना होता है कि कैसे बेस्ट वे से होगा। इसीलिए मैं क्या बोला भाई साहब को कि आप पहले एश्योर्ड हो जाइए कि ये कितना आप रॉ मटेरियल, कितना आप उसके लिए इनपुट ला सकते हो। बाकी टेक्नोलॉजी और कहाँ से फाइनेंस आएगा वो सब छोटी चीज़ें हैं। मेरे अगर शुरुआत के प्रेजेंटेशन चैम्बर में देखोगे तो मैं बोलता हूँ कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको 65% सोचना है, रिसर्च करनी है, बाकी 35% है, 5% सिर्फ बैंकिंग पार्ट रहता है मेरे उसमें। पैसा देने के लिए तैयार है आप, करना तो आपका विजन तो पेश करो लोगों के सामने, ये मैं नया लेके आ, उनको भी अपना धंधा चलाना है ना बैंकों को, कि वो भी बंद कर देंगे अगर आप लोग लोन नहीं लोगे, तो देने के लिए तैयार है। अभी किसी ने सोचा था, जैसे मैं बोला कि सस्टेनेबिलिटी एक रिसाइकलिंग प्लांट के लिए एसबीआई फाउंडेशन 10 करोड़ दे रहा है। तो ये आपको आइडिया लेके आना। मैं इसीलिए मैं यंग लोगों को बोलता हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चालू करो, दुनिया बहुत बड़ी है, रूटीन चीजें अब नहीं चलेगी, 19-20 नहीं चलेगा, वो मत चलाइए। मेरा एक सवाल है कि कंटिन्यू 5 साल 10 सालों 7 सालों से मैं सुन रहा हूँ एमएमए बढ़ रहा है, एमएमए बढ़ रहा है और वो बढ़ना है, और कॉटन कम हो रहा है। सर ये प्रैक्टिकली देखने जाए तो ये प्रैक्टिकल है, मगर उसका रीज़न क्या है? कंजम्पशन ज़्यादा है या लोगों का थॉट प्रोसेस बदल रहा है, ये क्या कारण है? अग्रवाल सर, एक चीज़ आपने देखी होगी आपके सूरत में ही, आज से 4-5 साल पहले किसी ने सोचा था कि पॉलिएस्टर की भी बेडशीट या बेड स्प्रेड होगा, आशीष भाई लेके आए।
आपके घर के कोने कोने में भी पॉलिस्टर लगेगा, जगह जगह लगेगा। देयर आर द आइटम्स। हम चीज़ों को अभी 95% आइटम अभी तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं किए, इतना कंजम्पशन है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारे लोग सीखे, कुछ यहाँ सूरत में सीखा लोगों ने, कुछ अहमदाबाद में, कुछ और जगह किया उन्होंने, मेरे कहने से अनफॉर्चुनेट हुआ कि 2-3 साल हमारे झगड़े में चल गए QCO में, नहीं तो हम तो अभी तक बहुत आगे बढ़ चुके होते। मैं इसीलिए हम तो बार बार टेक्निकली भी कोई भी अथॉरिटी आती है उनको ये बोलता हूँ, हमें रॉ मटेरियल दे दो जो चाइना की पॉलिसी, बेस्ट रॉ मटेरियल एंड चीपेस्ट रॉ मटेरियल दे दो, बाकी कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें खुला छोड़ दो, बाकी हम कर लेंगे। इतना मुझे मालूम है। हम चाइना की पता नहीं क्यों गुणगान करते हैं, लेकिन उनको स्थिति नहीं समझते कि चाइना गवर्नमेंट ने किया क्या। कई लोग बोलते हैं कि अरे वो हाईली सब पैसा देते हैं, ये करते हो, कुछ नहीं। दे मेक श्योर चाइनीज गवर्नमेंट की, एक तो उनके पास किसी भी रॉ मटेरियल का 1.5 साल स्टॉक रहता है। कितना? 1.5 साल का, कोई भी तरह का रॉ मटेरियल, एंड दैट दे सोर्स द चीपेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। वो आपको अवेलेबल कराती है वहाँ की गवर्नमेंट। और किसी भी प्रोडक्ट में अदर देन गारमेंट को छोड़ करके 50% तो आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है। तो आपकी जो प्रोडक्ट बना उसी कॉस्ट कितना फर्क गिरेगा। हम सोचते हैं बिजली में 1 पैसा कम करवा लो, इसमें कम करवा लो, ये सब आपके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत कम है। मैं यही बोलता हूँ कि एक कॉस्टिंग निकालना सीखो, आपके प्रोडक्ट को आपको मालूम पड़ जाएगा हमें ध्यान कहाँ देना है। एक चीज और स्ट्रेटेजी जैसे कुछ एरिया में किया था उस समय हमारे आशीष भाई ने चालू किया था, जब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था। हम रॉ मटेरियल बोलते हैं बहुत महंगा हो रहा है, क्वालिटी तो एक ही जैसी बना रहे होगे सब लोग। आपकी पूरी जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसका मिल करके एक ही ऑर्डर दो ना। देखो 3 रुपए किलो कम ना देवे सामने वाला तो आप छोड़ दीजिए। ये एग्जाम्पल बैठे, करना सीखो। देयर आर दी स्ट्रेटजीज की उस चीज को ओवरकम कैसे कर सकते हो। नहीं तो आज ही मैं आशीष भाई जी को सुबह बोल रहा था कि अभी मैं हो सकता है कि सूरत में ज़्यादा स्टे करने लगूँ, तो यहाँ हम लोग संडे को बैठ करके 1-2 घंटे का ब्रेन स्टॉर्मिंग क्यों नहीं करते हैं मिल करके कि भाई ये समस्या लेके और उस समस्या का निदान हम 10 लोग मिल करके बैठ के सोचे, कुछ तो अच्छा निकलेगा। तो थोड़ा सा अगर हम इस चीज में काम करें तो हमें बेटर, वी कैन क्रिएट मिराकल। हम एक कन्वेंशनल वे से भी काम कर रहे हैं, हमें अब इसको साइंटिफिक वे से लेके आने का। ठीक है, आपको मैंने प्रेजेंटेशन भेजा है जो मेरा था 2 दिन पहले, उसमें ये MMF इन मॉडर्न फैशन, उसमें देखिए परफॉर्मेंस, कंफर्ट एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये तीनों एडवांटेज है MMF। कंफर्ट भी है, सब कुछ है, परफॉर्मेंस भी है। मैंने प्रेजेंटेशन भेजा है, देखना। इसीलिए सूरत की इंडस्ट्री में मैं सर्कुलर निटिंग एसोसिएशन से हूँ, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो आज से 20 साल पहले सूरत में सबसे पहले निटिंग मशीन 25 साल पहले मैंने लगाया था। फिर इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं की, सबका माइंडसेट था ये इंडस्ट्री त्रिपुर लुधियाना के लिए। मगर आज मैं भी कहता हूँ ये इंडस्ट्री जिस लेवल पे काम कर रहा है सूरत पे, 7,500 मशीन विद इन द 4th ईयर, 4-5 साल कोविड के बाद आना बहुत बढ़िया। ऑन द वे 3,000 मशीन ऑन द वे है। और सबसे बड़ी बात सर, जितना यंग जनरेशन है मेरे इंडस्ट्री में, कोई नया लड़का 26 साल के नीचे का लड़का इन इंडस्ट्री डाला है, कोई पुराना इंडस्ट्री। और उनका इनोवेशन आप देखेंगे तो रियली इट इज़ ए एक्सीलेंट। आज त्रिपुर मंडी का जो बात कर रहे हैं वो 65% पॉलिस्टर में शिफ्ट हो चुका है, और जो सूरत उसको सप्लाई कर रहा है, हमारे इंडस्ट्री के सारा माल वहीं जा रहा है। सर त्रिपुर को MMF पे नहीं आने देना है, एक हमें बिल्कुल ये बात आपके साथ सही सूरत पॉलिस्टर हब है, उसको बना के रखना है। એની મોર ક્વેશ્ચન, કોઈનો બીજો સવાલ? सर जैसे हमने देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ा अच्छा चीज़, सूरत में तो न्यू कमर हूँ, तो ये देखा कि यहाँ पे जो पार्क की फैसिलिटी जो एक चलन यहाँ पे आया, और उसमें छोटे से छोटे एंटरप्रेन्योर भी आए अपना धंधा करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए।
और हमने देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोसेस हाउस एक सेकंड सेक्टर थर्ड स्टेज आता है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा होता है, उसमें छोटे लोग नहीं काम कर पाते। तो उस कॉमन फैसिलिटी के अंदर सबसे बड़ा कॉस्ट होता है चिमनी का। हर एक मिल का अपनी एक चिमनी खड़ी है, हर एक अपना धुआं जनरेट हो रहा है, हर एक का कोयला जनरेट हो रहा है। क्या ऐसे के लिए जैसे CPT प्लांट लगता है, क्या कुछ ऐसे तरह की फैसिलिटी डेवलपमेंट हो सकती है कि सबको मतलब जो है वो स्टीम की सप्लाई मिल जाए, मीटर लग जाए, अपना छोटा प्लांट भी चला सके। और एक वाइट कपड़ा बनाना है तो उसको छोटा कम स्टीम की जरूरत है तो उसको इकोनॉमिक प्रोडक्ट चाइना की जैसा सप्लाई कर सके वो। मैं वापस आता हूँ, जैसा बॉयलर चला गया इंडिविजुअल, वापस में स्टीम का लाइन लगा हुआ है, एरिया है, वो स्टीम डायरेक्ट मिल जाए तो महंगा पड़ता है। आपका जो बॉयलर का वेस्ट है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। आप कभी वापस आइएगा तो स्टीम का पूरा इंडस्ट्रीज खड़ा होकर आपको लाइन मिल जाती है। ऐसी चीज यहाँ यादव जी यहाँ हमारे पंडेसरा में भी है, सचिन में भी वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के लोगों ने स्टडी किया है, उस जैसे प्रोजेक्ट आने की तैयारी में है, वो ऑलरेडी स्टडी हो चुके हैं। कॉमन बॉयलर स्टीम में प्रोजेक्ट है इधर, वापी में भी है और सूरत में भी। वापी क्या है? और वापी में जो बनाया है वो सूरत के ही उन्होंने बनाया है, स्टीम हाउस। अंकलेश्वर में भी वो ऐसे और प्रोजेक्ट आ रहे हैं सर जी। अभी किसी ने जैसे सोचा था CTP में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट आएंगे, ऐसे अब ये भी आया। सर जी मैं बताऊं, एक आरस करके साहब है, आरस 80 का था, उसने करीबन 6 महीने पहले हम एक मीटिंग किया था। अब जो कंजम्पशन है ना वो सिंथेटिक का ज़्यादा है, कॉटन का कम होते जाता है। यस, इंडिया इज मेंट फॉर कॉटन। हमें देखना है कि सूरत का जो पर्पस है सिंथेटिक का, मैनेजमेंट का, यू आर द बेस्ट पर्सन वर्ल्ड, नोबडी कैन कॉम्पीट विद अस, बट हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा। हम 10 लोग एडजस्ट चलाते 10 मॉडल एक साथ में मिलकर क्या चाहते हैं रॉ मटेरियल, यू कैन गेट वेरी इजीली। अलग अलग जाएगा आपको नहीं मिलेगा, दलाल ये वो घुमाएगा। आप सोचो कि मोटर जेट वाले 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, ग्रुप बनाओ कि हम क्या करना चाहते हैं, एडजस्ट वाले क्या है, उसका एंड यूज़ क्या है। कभी इनका कॉपी का बनाएगा कोई मतलब नहीं आता है, इनका एक्सपीरियंस से कुछ बनाएगा, राइट। नया बनाकर सोच होती है कि मैं डाल रहा हूँ, अच्छी डाल रहा हूँ, काम हो जाएगा। वर्मा साहब ने वही बोला, इनोवेशन बिना सूरत का सबसे एक बड़ा बैकड्रॉ है, हम कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा चाहते हैं। सर जी मैं टेक्सटाइल मगरब में 50 साल से हूँ, मैं वापी रहता हूँ, टेक्सटाइल का कुछ काम कर रहा हूँ। हम क्या है कि इवन पाटन का पटोला कॉस्टिंग फ्रॉम 2 लाख to 10 लाख रुपीज़। सूरत ने क्या किया, डिजिटल पेंटिंग बना दिया। आपकी टाई थी, टाई पहले गिफ्ट देते थे, सिल्क की टाई 600-700 की, और टाई 20 रुपये में बन जाती है। सूरत इज पीपल हु मेक एट अ लोअर कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी, बट यू शुड मेंटेन द क्वालिटी। आपका ब्रांड होना चाहिए, सूरत की ब्रांड होनी चाहिए। तिरुपुर क्या है सर, तिरुपुर में 100% कॉटन है, उनको कोई सिंथेटिक कुछ नहीं है। हाँ, लुधियाना में एक्रिलिक है, वूल है, और सूरत 90% सिंथेटिक में आप आगे चल रहे हैं। कॉटन सारी मिल बंद हो गई। आप अच्छा मिल कर सकते, आप एक ग्रुप बनाइए कि भी हम प्रोसेसिंग वाले क्या बोले, कोई एक्सपर्ट लोग आता है उसे समझिए कि हाउ कैन वी रिड्यूस द वाटर, हमको रिसाइकल पानी कैसा चलेगा। सरकार भी बोला, इनके मीटिंग में था मुंबई में, म्यूनसिपालिटी इज कमिंग फॉरवर्ड, अब बेस्ट एडजस्ट करके दे दो, मिलना पड़ेगा। 2 हाथ 10 स्पीकर मिलो, एक्सपर्ट को बुलाओ। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है कि आप अच्छे लोग क्यों बनाएंगे, कोई कॉलेज का, कोई एक्सपर्ट का, डाइस्टअप का कलर अच्छी करनी, आप डाइस कैसा कम करेंगे, डाई विदाउट कलर, वो भी मशीन आ गए, खरीद में लगे हैं, आप सोचेंगे ना अच्छा। एक जस्ट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अग्रवाल साहब जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, नायका कोई अगर प्रोडक्ट 2000 का दे रहा है तो इन्होंने उसका 300 की कॉपी निकाली कर दी, सही बात है। एंड उससे बेस्ट क्वालिटी मैंने खुद देखा है। और अग्रवाल जैसे जो अभी हमें कम से कम 100 लोग और खड़ा हुआ है, तो आप आगे આગળ ચાલીએ, પ્રોગ્રામને આગળ લઈ જઈએ। એક ખાસ જાહેરાત કરવાની કે આજના પ્રસંગે આપણા ટેક્સટાઇલ પર્વ 2 Day 6માં ખાસ ઉપસ્થિત રહેલા કેટલાક અગ્રણીઓની હાજરીની આપણે નોંધ લઈએ છીએ। વેસ્કોપ વેડ રોડ એસોસિએશનના શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ ચાવલા, એ જ સંસ્થાના PRO શ્રી ચંદ્રેશભાઈ, વોર્પ નિટિંગ એસોસિએશનના શ્રી વિષ્ણુભાઈ,
પ્રોસેસિંગ અને ટ્રેડિંગ સાથે વર્ષોથી સંકળાયેલા શ્રી મનોજભાઈ ખન્ના સાહેબ, કિમ પીપોદરા એસોસિએશનના શ્રી રસિકભાઈ કોટડિયા, સેલટેક્સના અને સેલટેક્સ પ્રેક્ટિશનર જીએસટી હવે તો શ્રી પચીગર જનકભાઈ, વાપીથી ખાસ પધેરેલા શાહ સાહેબ, અન્ય મહાનુભાવ, આપની હાજરી અમે નોંધ લઈએ છીએ. પ્રોગ્રામને હવે અંતિમ તબક્કે લઈ જઈ રહીએ છીએ અને આભાર વિધિ. સૌ પ્રથમ તો હું સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી અને GFRRCના ચેરમેન શ્રી મુદ્રા સરનો આભાર માનો કે આવા સુંદર પ્રોગ્રામો વર્ષોથી જે ચાલી રહ્યા છે અને એને બહુ સારી રીતે આગળ ધપાવી રહ્યા છે. અને જે ટેક્સટાઇલ પર્વ, જે આગળ ટેક્સટાઇલ વીકના નામથી ઓળખાતું, પણ એનું નામ ચેન્જ સાથે આ વર્ષે બીજું પર્વ કરી રહ્યા છે અને ક્રમશઃ એને અવકાર મળી રહ્યો છે. વધારે યંગસ્ટર જોડાતા રહ્યા છે. એ આપ સૌનો આ તબક્કે આભાર વ્યક્ત કરું છું. ચેમ્બરની અનેક કમિટીઓના સભ્યો, એમનો પણ આભાર માનું, જેમણે આ પ્રોગ્રામને સફળ બનાવવા માટે ખાસ મહેનત કરી છે. ધી સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ અને ચેરમેનની ટેક્સટાઇલ ટાસ્ક ફોર્સના ચેરમેન શ્રી આશીષભાઈ ગુજરાતી, અન્ય ચેમ્બરના કાર્યક્રમને સહયોગ માટે જે કર્મચારી સભ્યો છે એ લોકોના સાથ સહકાર બદલ ખૂબ આભાર માનું છું. અને સૌથી મોટો આભાર આપ સૌનો કે આપ સૌ કેટલાય દિવસોથી આવી રહ્યા છો. પહેલી તારીખથી આ જ રીતે તમે ચેમ્બરની હોસલા અફઝાઈ કરશો અને આવતા રહેશો. ચેમ્બરના કેટલાક અગ્રણી અશોકભાઈ જીરાવાલા જે ટેક્સટાઇલ સાથે સંકળાયેલા છે, એ લોકો એમની વ્યસ્તતાના કારણે આવી નથી શક્યા. બધું કાર્યક્રમમાં એમનો ખૂબ મોટો સહયોગ રહ્યો છે. તો આ સાથે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ટેક્સટાઇલ પર્વ 2ની અંદર જે લોકોએ સીધી ને અડકતરી રીતે મદદ કરી છે, સૌનો આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર, આપ સૌનો આભાર. એ સાથે આ પ્રોગ્રામ આપણે પૂરો કરીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.